You are R4 posted in the antenatal clinic. Sarah has presented to you with the 6 weeks gestational amenorrhea. She is going to visit her mother, who is suffering from the severe malaria. She is well aware of pregnancy risk with malaria, but insisting to travel. In the next 10 minutes, answer following question. What advice you will give her on malaria prevention? What is the secondary prevention for malaria? What are the signs and symptoms of severe malaria you would warn her for? What are the risks associated with the malaria infection in the pregnancy? ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चंस आपके सामने सारे हैं, वन बाय वन आंसर करें। First of all, after the mutual introduction, and I will confirm the given details. I will uh, take the deep demographic data. Its patient is Sarah. I will inquire about her gestational amenorrhea and the last menstrual LMP parity, and then I will first of all, I will counsel my patient why she wants to go. Is her mother is ill? No, I will recommend her. Ideally, she should postpone her trip because she is as she is pregnant. She is high risk to the malaria. But if and because there is associated risk with mother and baby, but if patient is my patient is insisting to go through, I will counsel her regarding the preventive measures that during she should have a uh, mm, du- uh, during her traveling she should she is travel to endemic areas, so during her traveling she should sleep in the nest and should uh, she should use mosquito sprays or repellents, and also she should uh, mosquito repellents sprays and should wear the loose clothes with full sleeves. All precautionary measures should be followed, and patient there are some medications for the prevention and treatment of malaria as she is pregnant. So I will counsel her that the in the first trimester she quinine and can be and the second line is mefloquine and the chloroquine can be given as a first, and she should avoid the Premaquine and also the doxycycline. Patient and during her mm, uh, uh, symptom in severe malaria are the it can be mostly the patient have least common is the falciparum plasmodium malaria, but अच्छा सॉरी डॉक्टर परवैया इंटरप्ट कर रही हूँ। डॉक्टर जवेरिया ने शायद पढ़ा हुआ, वो कह रही हैं कि मैं कर लूँ। हेलो जी ठीक है, रियली सॉरी डॉक्टर परवैया, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम प्लीज नहीं डोंट है। माइंड। नहीं मैंने नहीं, इतना अच्छा नहीं पढ़ा, ओके। वो कह रही हैं कि मैंने किया हुआ है। ठीक है जवेरिया, आप करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलबुशा। एक्चुअली ना मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मैं फिर भी मतलब करना चाह रही हूँ प्रेजेंट। चलो करो। I have read the scenario. I'm ready for the structured discussion. After mutual introduction and the confirmation of the case, I will ask the missing demographic details from the patient, and I will also ask about the current pregnancy, how her pregnancy is going so far. Is she taking any folic acid? Any investigations has been done or not? And any complication during these 6 weeks has been occurred or not? Or any comorbidities or any medical history of concern? Then I will address the further concerns of my patient, and I will also inquire why she wants to go.
to that area, and I will also inquire about the drug allergies histories and the socioeconomic status. After that, I will proceed for the counseling of my patient in by starting from the providing the support to the patient and counsel about the malaria, and also tell that it is not 100% preventable. I will ask my patient to postpone the trip as and I will also tell about the chemoprophylaxis as it is available, but it is not 100% effective. Then I will tell the fetal-maternal implications that can occur during her stay, including the cerebral malaria in the mother and the intrauterine growth restrictions, stillbirth, preterm labor in the baby. And I will counsel my patient by telling the by providing the awareness about the malaria and its consequences by providing her the patient information leaflets, and tell that the risk will further depend upon the stay of the length and the area and also the contact history. I will ask my patient for the usage of repellents, cloths with the full sleeves, use the nets, lotions, spray to prevent the bioprophylaxis, and we'll also counsel about the chemoprophylaxis, about the drugs which are the first line, including chloroquine or the proguanil. And the second line is the mefloquine, and the third line is the atovaquone or the proguanil. I will tell the patient about the signs and the symptoms, including flu, fever, with the rigor and with the rigors and chills. And for the self-diagnosis and I will also counsel about the self-medication, which can include the quinine or clindamycin, and I will ask my patient for the contact with the health services. The secondary prevention for the malaria is the chemoprophylaxis, which is the first line, second line, and the third line. Including the chloroquine, proguanil is the first line, second line is the mefloquine, which is given till 4 weeks after leaving the area, and the third line is the tovaquine or the proguanil, which is given 7 days till 7 days after leaving the area. And what are the signs and symptoms of severe malaria you would warn her for? The signs and the symptoms include the fever with the chills and the rigors and nausea, vomiting. It can also be associated with the diarrhea, malaise, joint pains, body aches. And in the severe cases, it can lead to the shortness of breath, bleeding from the different sides of the body, decreased urine output, or the altered sensorium. And what are the risks associated with the malaria infection in the pregnancy? It can lead to the worsening of the condition, including cerebral malaria in mother, and the hemorrhage from the different sides of the body. And in the baby, it can lead to the intrauterine growth restrictions, stillbirth, preterm labor. Dr. Palusha, I am done with my station. Okay. What will you tell your patient if she is taking chemoprophylaxis and after taking the first tablet she vomits? What will you advise her? Um, uh, uh, डॉक्टर परमिशन सॉरी मतलब आप पूछना चाह रही हैं कि अगर वो वॉमिट कर देती है उसके बाद हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को? Yes. मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन नहीं डॉक्टर परमिशन, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता इसका. Okay. No problem. चले, आपने अपना स्टेशन ओवरऑल बहुत अच्छा किया. आप स्टार्ट किया आपने डेमोग्राफिक डिटेल के साथ और आपने उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और फॉर हाउ लॉन्ग शी इज मैरिड, हाउ डिड शी कंसीव, इज शी टेकिंग फोलिक एसिड एंड हैज शी बुक्ड herself up till now, or is there any complaint up till so far, how is pregnancy going, and did she have the dating scan. ठीक है, इसमें से शुरू शुरू के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो जैनब ने कर लिए थे, आपका मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन आप दोनों ने मिलके सारी शुरू की बातें ये कर ली थी और ये ज़रूरी है. 6 वीक्स तक का कोर्स आपने सारा पूछना है. देन यू विल कम टू द कंसर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो स्टार्ट करोगे ना, आपने बोला कि डिपेंड्स अपॉन उसका जो रिस्क होगा वो दैट विल डिपेंड अपॉन द एरिया वेयर शी इज गोइंग एंड हर लेंथ ऑफ स्टे.
तो जब पेशेंट को आपने शुरू वाला क्वेश्चन ही है ना आपका, व्हाट विल यू एडवाइस गिव ऑन द मलेरिया प्रिवेंशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हिस्ट्री में ही जो है ना इसको इनकॉर्पोरेट कर दो, बजाय इसके कि प्रिवेंशन के साथ आप बोलो। मैंने लिख लिया था लेकिन फिर आगे आपने जो है इसको मर्ज कर दिया कि डिपेंड करेगा किस एरिया में जा रही है, कितना उसका स्टे है, उस हिसाब से फिर इसको कीमोप्रोफाइलेक्सिस दी जाएगी। तो आप अपनी हिस्ट्री में ये लिखें, ये बात आप पूछें कि आई वुड इंक्वायर अबाउट द एरिया वेयर शी इज गोइंग टू सी हर मदर एंड फॉर हाउ लॉन्ग शी इज प्लानिंग टू स्टे देयर। ठीक है। इट विल इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि उस पेशेंट अगर उसका स्टे 1 महीने या उससे ज्यादा है तो देन कीमोप्रोफाइलेक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसका रैशनल ये है, तो आप अपनी इस पॉइंट को आप हिस्ट्री में ऐड करो, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेशेंट को फिर काउंसल कर सको। फिर उसके बाद जो है प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब इसकी प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का आपने गाइडलाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, इसको बस मैं सिर्फ आपके वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छा जो है वो फॉर्मुलेट करना चाहूंगी। आप बोलेंगे आई विल फॉर द मलेरिया प्राइमरी प्रिवेंशन आई विल टेल हर अबाउट द ABCD प्रोटोकॉल which includes awareness of the risk. I will tell her about the risks she is associated with this visit, okay, and she is at the risk of getting the malaria infection, and I will tell her about the bite prevention, use some by using some आगे जो भी चीजें आपने बताई वो। then on the third, the C stands for the chemoprophylaxis. Chemoprophylaxis includes, अब ये जब आप ABCD बताओगे ना तो आधे क्वेश्चंस आपके इसी में आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उस कीमोप्रोफाइलेक्सिस में फिर आप बताएं मैफ्लोक्विन है और मेलारोन है। फर्स्ट लाइन जो है ना वो मैफ्लोक्विन है फॉर द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट। अब अभी हमें रेजिस्टेंस का नहीं पता कि जिस जगह वो जा रही है वहां पे रेजिस्टेंस है या नहीं, तो आप सारे ही कोट कर दो कि क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरियाज के लिए जो है वो मैफ्लोक्विन इज द फर्स्ट लाइन एंड क्लोरोक्विन इज फॉर द क्लोरोक्विन नॉन रेजिस्टेंट एरियाज। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपने ड्यूरेशन बताई बहुत अच्छे तरीके से, आपको ड्यूरेशन भी याद थी। देन उसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीवियर मलेरिया यू विल वार्न हर ऑफ, ये भी बिल्कुल आपने बता दिया। और इसके साथ आप ये बता देंगे इफ शी आई विल एडवाइज हर दैट इफ शी डेवलप दी साइन शी शुड देयर एंड देन सीक द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ठीक है। स्टैंड बाय ट्रीटमेंट का आप उसको बताएं कि पहले तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन करे। कीमोप्रोफाइलेक्सिस इंडिकेटेड है अगर उसका 1 महीने से ज्यादा का स्टे है, और दूसरा अगर उसको मलेरिया के सिम्टम्स एक्यूट आ जाते हैं तो आप बता देंगी कि आप मलेरिया की ट्रीटमेंट स्टैंड बाय स्टार्ट कर देंगी। स्टैंड बाय ट्रीटमेंट क्या है? डज एनीबडी नो? क्विनीन या क्लिंडामाइसिन। जी, क्वाइनिन एंड क्लिंडामाइसिन दोनों है। आपको डोज याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिस्क एसोसिएटेड विद मलेरिया इन्फेक्शन इन द प्रेगनेंसी, ये आपने सारे बता दिए। बस यही चीजें थी जो मुझे आपको, करंट प्रेगनेंसी का कोर्स था, उसकी एलर्जीज भी आपने, कीमोप्रोफिलैक्सिस से पहले आपने उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछा, एलर्जीज आइडेंटिफाई की, वेरी गुड। और जो है फॉर हाउ लॉन्ग शी इज स्टेइंग देयर एंड ये सारी चीजें भी आपने बाद में पूछी, लेकिन मेरा जो है वो आपको ये मशवरा है कि आप स्टे का और क्या कहते हैं किस एरिया में वो जा रही है ये आप हिस्ट्री में ही पूछो, देन इट विल बी इजी टू मैनेज हर। अगर रोल प्लेयर भी है ना तो भी आसान हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आप अपनी हिस्ट्री में डाल लें। ठीक है। और कोई इसमें प्रॉब्लम किसी को? हाँ, लास्ट जो मैंने वो आपसे क्वेश्चन वॉमिट किया था वाला। वॉमिटिंग वाला। अगर आपकी पेशेंट कीमोप्रोफिलैक्सिस लेती है या स्टैंड बाय ट्रीटमेंट लेती है, इफ शी वॉमिट्स विद इन 30 मिनट्स ऑफ टेकिंग द टैबलेट, तो वो फुल डोज रिपीट करती है अगेन। एंड इफ आफ्टर 30 मिनट्स उसको वॉमिटिंग आती है टैबलेट लेने की, तो फिर वो हाफ डोज रिपीट करती है। दिस इज द रिकमेंडेशन। ठीक है। इट्स फ्रॉम योर गाइडलाइन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कोई प्रॉब्लम इसमें? चले आगे। नहीं, छोटा मुझे सा कोई विषय टॉपिक है और नहीं। छोटा सा सिनेरियो मैंने बनाया था इसका। हाँ जी। डॉक्टर परवजा, इसमें हमने डोजेस नहीं ना याद करनी होती? नहीं, डोज नहीं आपने याद करने। इसके अलावा जो है मलेरिया का जो दूसरी हमारी गाइडलाइन है ट्रीटमेंट की, उसमें जो लास्ट का आपको साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए।
सिंपल जो पेशेंट को आपने बताने हैं। इसके अलावा रुको, गाइडलाइन खोलती हूँ। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये वाली स्क्रीन दिख रही है आपको? गाइडलाइन वाली जी दिख रही है? डॉक्टर बलबशा, एक चीज मैंने पूछनी थी कि जिस तरह मैंने इसके अंदर प्रिवेंशन बताई है, तो मैंने इसके अंदर उसका फर्दर प्रेगनेंसी का कोर्स बताना था कि 20 वीक्स पे वो आएगी हमारे पास और फिर ये सब। नहीं, नहीं, आपसे जो क्वेश्चंस किए गए ना, आपने उन्हीं का जवाब देना है। इट्स फोकस्ड विद मलेरिया। इसमें से हमने सब बॉक्सेस ही मोस्टली इसके करने हैं। आपको ये इसकी सीवियर मलेरिया के सिम्टम्स पता होने चाहिए। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये लैब की फाइंडिंग्स है, ये आगे बड़े वाले टेबल में आएगा। ये पेशेंट के सिम्टम्स हैं। आप जो सिम्टम्स जो हैं आप यहाँ से याद करें प्रिवेंशन वाले में बताने के लिए, कि फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल पेन, उसको कफ होता है, उसको डायरिया होता है, या उसको लगता है कि वो पैलर है, उसको जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद हर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, ठीक। अब ये बाहर तो ये पूरे इनके प्रोटोकॉल्स, लैब्स बनी हुई होती हैं, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो टेबल है ये सारा एक एल्गोरिदम नीचे बना हुआ है, उस पर आ जाते हैं, बस हमने वो करना है। ये जो है ना सपोर्टिव क्लिनिकल केयर है सीवियर मलेरिया में। आपको इसमें से कोई सा भी जो है ना कॉम्प्लिकेशन दी जा सकती है मलेरिया की मैनिफेस्टेशन। अगर इन्होंने कंटिन्यू करा इस सिनेरियो को तो ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसी सिनेरियो की बात करें कि ये पेशेंट आ गई आपके पास, कोई मिड ट्राइमेस्टर में आ जाएगी, विजिट करा, इसका स्टे बढ़ा था, इसने कीमोप्रोफाइलेक्सिस नहीं ली, ब्ला ब्ला, एंड नाउ शी हैज डेवलप द कॉम्प्लिकेशंस। हो सकता है वो हाइपरपेरेक्सिया के साथ आए, हो सकता है वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आए, ठीक है, या फिर उसको ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी इश्यू इसमें से हो सकता है। तो फिर इसकी सारी मैनेजमेंट आगे लिखी हुई है, हर प्रॉब्लम की, हर कॉम्प्लिकेशन की मैनेजमेंट लिखी हुई है। ये आपने एक टेबल करना है इसमें से। स्ट्रक्चर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे की ट्रांसमिशन, ये कर लें। बच्चे का अब आपसे पेशेंट पूछ सकती है मलेरिया जिसको होगा, तो वो पूछेगी मेरे बच्चे में जाने का कितना चांसेस है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अगर उसका इन्फेक्शन जो है नियरली बर्थ के करीब हुआ है तो फिर बच्चे में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और फिर हमने टेस्ट करवाने होते हैं, हमने प्लासेंटा से ब्लड लेना होता है, हमने कोर्ट से ब्लड लेना होता है मलेरिया का, और उसमें टेस्ट जो होता है वो माइक्रोस्कोपी थिक एंड थिन फिल्म होता है, ठीक है। बर्थ पर करते हैं, उसके बाद वीकली करते हैं ब्लड फिल्म्स फॉर 28 डेज, मतलब टोटल 28 डेज तक आप वीकली करते हो। मीन्स के आप 4 बार इसके लो, 5 बार आप इसके लोगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ लोगे, फिर आप पूरे महीने तक 28 डेज तक आप वीकली इसके ब्लड फिल्म्स बच्चे के लेंगे, ठीक है। द रिपोर्टेड प्रिवलेंस ऑफ कंजेनिटल मलेरिया वेरीज फ्रॉम 8% टू 33%। ये वही स्क्रीनिंग लिखी हुई है न्यूबॉर्न की। और आपने जो सैंपल लेना है वो आपने प्लासेंटा से भी लेना है, कॉर्ड ब्लड भी लेना है, ठीक है। और बच्चों का थिक एंड थिन फिल्म। ठीक है डॉक्टर। अच्छा। ये चीज इसमें से बस याद करनी है, और ये तुम लोगों का बहुत बड़ा सारा एक, इसी को याद करना है बस तुम लोग। आप इसके सेक्शंस बनाएं। आप इसको नॉन फेल्सीपेरम मलेरिया अलग करेंगे, आपसे सारे एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। आप इसको एज अ इमरजेंसी केस तैयार करें, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, ठीक है, और जो है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, नॉन फेल्सीपेरम, इस तरीके से। और ये फेल्सीपेरम मलेरिया, इस तरह आपकी ये प्रिपेयर होगी। ब्लड फिल्म्स में आपकी पेशेंट प्रेजेंट की है सीवियर सिम्टम्स के साथ, फिब्राइल हो गई, विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल और रेजिडेंस इन द मलेरिया एरिया, ठीक है, शुड बी असेस्ड अर्जेंटली। रिसेंट रिटर्न 3 वीक्स में आया है, तो आपने इन्फेक्शन कंट्रोल रिक्वायरमेंट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ ये उनकी चीज़ें, हम तो बस अपने जो जो सस्पेक्टेड हमारे इन्फेक्शन होते हैं हम उस सबका भेज देते हैं ना, वायरल हेमोरेजिक फीवर, एवियन इन्फ्लुएंजा, सीवियर ARDS। कीमो प्रोफाइलैक्सिस इज नॉट 100% इफेक्टिव, प्रेग्नेंट वुमेन विद मलेरिया कैन डिटीरिएट वेरी रैपिडली, तो हमने बहुत इनको सीरियसली लेना होता है, हमें फॉरन एडमिट करना होता है। नोटिफाई ऑल केसेस टू लोकल हेल्थ प्रोटेक्शन, ये भी उन्हीं का प्रोटोकॉल है। अब अर्ली डायग्नोसिस, असेस फॉर द सिवियरिटी एंड ट्रीटमेंट इज वाइटल टू अवॉइड malaria deaths.
ठीक है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली, नो साइन एंड सिम्टम्स कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट मलेरिया। आप ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको पता है, इनकी बेसिस पे आप सस्पेक्ट करेंगे और आप पेशेंट को एडमिट कर लेंगे। अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, ये देयर इज अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपने सारी भेजनी है, जिससे आपको मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस की मैनिफेस्टेशंस भी पता चल जाएगी। ठीक है, दिस दिस इज अ ह्यूज लिस्ट, ये आपने सारी करनी है। ठीक है। अब 3 रिजल्ट्स निकलेंगे आपके इन ब्लड फिल्म्स में, या तो मलेरिया नहीं है। आप एक तो आप एम्पेरिकली प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर देते हो जिस पेशेंट को, वो आई है आपके पास। तो अगर आपने ब्लड फिल्म्स करवाए एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ मलेरिया, सिंगल नेगेटिव टेस्ट डजंट इंक्लूड एक्सक्लूड मलेरिया, आप प्रोफाइलैक्सिस आप स्टॉप कर देंगे अंटिल मलेरिया एक्सक्लूडेड। अवॉइड एम्पेरिकल थेरेपी अनलेस सीवियर इलनेस, सीक एक्सपर्ट एडवाइस, रिपीट ब्लड फिल्म्स डेली फॉर 2 days। मलेरिया अनलाइकली, अगर 3 नेगेटिव ब्लड फिल्म्स उसके हो नेगेटिव आ जाती हैं, तो फिर हम मलेरिया को जो है वो नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं और हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस को लेकिन फिनिश कर देते हैं। ठीक है, सस्पिशन की बेसिस पे हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर देते हैं। जब 3 फिल्म्स हमारी नेगेटिव आ जाती हैं, फिर हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस को फिनिश करते हैं, खत्म कर लेते हैं तब तक। सही है। अच्छा, इसके बाद अब आपके ये साइंस हैं जब आपने पेशेंट को आईसीयू में केयर करनी है, ये आपकी सारी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की, इसमें से कोई एक भी चीज होगी ना, एक भी चीज, आपका पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिक है, उसको पल्मोनरी एडिमा है, पैरासाइटीमिया आपको मिल गया मलेरिया उसके ब्लड में, ठीक है, या फिर आपने सीबीसी कराई, उसमें आरबीसीज पैरासिटाइज्ड है, सीवियर एनीमिया, ये सीवियर एनीमिया की डेफिनेशन है। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है उसको, रीनल इम्पेयरमेंट हो रही है, हाइपर लैक्टेटीमिया, उसका लैक्टेट बढ़ा हुआ है, शॉक में जा रही है पेशेंट, तो आपने उसको आईसीयू की केयर देनी है पेशेंट को। केयरफुल फ्लूइड बैलेंस है, ओवर हाइड्रेट नहीं करना है इनको, रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, 4 आवरली इनकी ऑब्जर्वेशन होगी इन सारे वाइटल्स की। डेली आप ये वाले ब्लड टेस्ट रिपीट करवाएंगी। शॉक में चलेगी तो आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियमिया के लिए टेस्ट करवाएंगे। सही है, ये एल्गोरिदम था सीवियर वाले का। अब ट्रीटमेंट पर आ जाओ। कॉम्प्लिकेटेड की आर्टिसुनेट हम देते हैं, आर्टिमीटर, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस रिगार्डलेस ऑफ गेस्टेशनल एज, कोई भी गेस्टेशन, कोई भी ट्राइमेस्टर पे आई है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के साथ आई है, तो हमने आर्टिसुनेट देनी, या फिर दूसरी हमारे पास ड्रग है क्वाइनिन। क्वाइनिन आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है, इसमें जो है ना आपने 5% एक्सट्रोज में देनी होती है इसको, 5% एक्सट्रोज में हम ये देते हैं। ठीक, नो लोडिंग डोज इफ वुमेन ऑलरेडी टेकिंग क्वाइनिन और मेफ्लोक्वाइन, कीपिंग इन माइंड, पहले अगर नहीं ली उसने तो फिर तो आप लोडिंग डोज दे देंगे, लेकिन अगर उसने पहले ओरल फॉर्म में ली थी, ठीक है, जैसे सपोज हमने डिस्कस किया कि हम स्टैंड बाय ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट ने ली लेकिन फिर भी उसका मलेरिया कॉम्प्लिकेट हो गया, फिर हम उसको लोडिंग डोज नहीं देंगे, फिर हम मेंटेनेंस ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब पेशेंट स्वॉलो करने के काबिल हो जाएगी, हम उसको ओरल पर ले आएंगे, और ओरल रिजिम ये वाली है। नॉन फेल्सीपेरम मलेरिया पर अब आ जाओ। इसमें क्लोरोक्विन देते हो, आपने सिर्फ ड्रग्स के नेम याद करने हैं। रिलैप्स के लिए क्या देना है, प्रेगनेंसी में रिलैप्स के लिए हम क्लोरोक्विन ही देते हैं, और आफ्टर डिलीवरी हम उसको प्रिमाक्विन दे सकते हैं, जो कि हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में क्वाइनिन है आपके पास, रियामेट है, और प्रोग्वानिल है, मेलेरॉन। सही है, नाम याद करने हैं बस आपको। लेकिन ये पूरा पूरा जो टेबल है ना, ये अल्गोरिदम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इवन इफ यू सस्पेक्ट मलेरिया, आपका जो अप्रोच होनी है ना वो ये होगी, ये सारी चीजें आप भेज देंगे। ठीक है, इसका भले स्क्रीनशॉट ले लो, हाईलाइट तो ये हो ही गया है। चले, मूव करें नेक्स्ट सिनेरियो पे। डॉक्टर पलवशा, अगर एक पेशेंट हमारे पास मलेरिया की याद के, लेकिन अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, हमने इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट कर लेना है, एमडीटी इन्वॉल्व करेंगे और हम उसके साथ कीमो प्रोफिलेक्सिस स्टार्ट करा देंगे। हाँ जी, हाँ अभी जी। अभी हमारे अगर टेस्ट अवेटेड है। हम्म। ठीक है, तो फिर उसमें हम क्विनीन स्टार्ट करवाएंगे या क्लोरोक्विन, मतलब कीमो प्रोफिलेक्सिस में क्लोरोक्विन ही स्टार्ट करवाएंगे ना? हाँ, क्लोरोक्विन स्टार्ट कराओगे। आपको आपको पता चलता, हाँ, आप क्लोरोक्विन से स्टार्ट करवाते हो, फिर अगर वो जो क्या कहते हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है या फेल्सीपेरम नहीं है, तो फिर नॉन फेल्सीपेरम में हाँ,
जो है आपके पास, नहीं खैर नहीं नॉन फेल्सीफेरम में क्लोरोक्वीन है, सॉरी, नॉन हाँ, फेल्सीफेरम में नॉन क्लोरोक्वीन। फेल्सीफेरम। हम्म। और अगर फेल्सीफेरम निकल आता है फिर क्विनीन पे शिफ्ट कर देंगे हाँ, उसे। फिर क्वानिन पे शिफ्ट कर देते हो। वैसे ये आपको ऐसे नहीं आएगा कि सस्पेक्ट करेंगी आप, आपको ये मलेरिया डायग्नोज करके ही दिया जाएगा, फिर आपसे एक्यूट की ट्रीटमेंट पूछी जाएगी। ठीक है। वैसे आज तक पूछी नहीं है, ये सिर्फ हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक टॉक्स हुआ था, उसमें हमसे इन्होंने मलेरिया का पूरा ये गाइडलाइन पूछी थी। तो आज तक आया नहीं है, लेकिन देयर इज गाइडलाइन, आपको पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, इन्फेक्शंस में तो है ना ये, और हमारे पास तो ये कॉमन है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, करना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट मूव करें हम। कौन कर रहा है अगला सिनेरियो? डॉक्टर पलवशा, इसकी वैक्सीनेशन का तो जरा बता दें कि इसकी वैक्सीनेशन है। नहीं, प्रिवेंशन है, वैक्सीन नहीं है। एनीबडी दूसरा सिनेरियो, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैंने ये नहीं कहा था कि क्लास होगी नहीं, मैंने कहा था आज आखिरी क्लास है। डॉक्टर परमेश, शर्मिंदगी हो रही है। मैंने मलेरिया डेंगू तो नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी पढ़े हैं। आगे कोई डेंगू तो और आसिया आसिया ने रखवाया था ना, आसिया ही पढ़ाएगी। मैडम मैंने जो है वो चिकन पॉक्स करा दे, मैंने चिकन पॉक्स अच्छी तरह किया है। और चिकन डॉक्टर पॉक्स का परवश्ता, मैं भी तो आज की क्लास खास तौर पे इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे आपका बहुत थैंक्स करना है। आपने बहुत सपोर्ट दी, बहुत हम लोगों को पुश किया है, बहुत पुश किया है कि यहाँ तक ले आई आप। वरना तो आप इतनी सॉफ्ट हैं, तो आपकी सॉफ्टनेस की वजह से ही इतना कुछ मैंने लर्न कर लिया। तो मैं तो आपका बहुत थैंक्स करना चाह रही थी, अरे यार, बल्कि नो कर रही हूँ। वेलकम, नो प्रॉब्लम, थैंक्स की क्या बात है, अभी मैं कहीं नहीं जा रही, इधर ही हूँ, तुम लोगों के साथ ही हूँ, बस लाइव क्लास अभी फिलहाल पॉज हो गई। चले, अब ये आपका ये चिकन सिनेरियो पॉक्स है। मैं हाँ, ये मैं आप कर करो। लूँ डॉक्टर परवेश? जी जी जी, करो, पढ़ो। जी। 30-year-old Mrs. Sarah Gavida 1 para 0 presented at 24 weeks of the pregnancy, and she is carrying a single alive fetus. She has been under your regular antenatal care. Her pregnancy course has been unremarkable up till now in terms of her blood test, urine test, dating scan, and the anomaly scan. Today she has presented being worried as her niece, whom she spent the whole day with yesterday, has developed the chicken pox rash. Mrs. Sarah is unsure if she is ever had the chicken pox. In the next 10 minutes, take the relevant history, discuss the next step of your management, discuss the next step of the action and the antenatal care with her. Okay, madam. स्टार्ट। यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है। तारा, मुझे ये बताया गया है कि आपकी उम्र जो है वो 30 साल है और आपका ये पहला हमल है। आपको 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और अभी तक आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी और सही जा रही है, जिसमें आपके सारे ब्लड टेस्ट भी सही हैं और बच्चे के बनावट का अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सही है। ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब। सारा, मुझे ये भी बताया गया है इस तहरीरी नामे में कि आप अभी परेशान हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल आपने पूरा दिन अपनी भांजी के साथ वजह से आपके बच्चे के ऊपर और हमल के तो कोई असर नहीं आएगा। क्या आपकी परेशानी की वजह यही है? जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, उसको चिकन पॉक्स के रैश निकल आए, आज ही उसकी कॉल आई, मुझे उसने बताया, तो मैं तो फिर मुझे याद आया कि कल मैंने तो सारा दिन उसके साथ स्पेंड किया है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं मुझे भी ना हो जाए।
अच्छा सारा, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। और चिकन पॉक्स जो है वो एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है कि जिससे अगर सही वक्त पे बर वक्त सही जो है वो इक़दाम ना किए जाएं तो इससे हमल को और माँ को भी नुकसान हो सकता है। आपकी परेशानी बिल्कुल जो है वो बावजह है। अच्छा सारा, ये बताइए कि आपको इस हमल का कैसे पता चला? आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था या प्रेगनेंसी टेस्ट, और अभी तक आपने किसी डॉक्टर के पास नाम वगैरह लिखवाया है? जी डॉक्टर साहब, मैंने घर पे टेस्ट किया था, पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो है मैंने आपको दिखाया था। मैं रेगुलर आपकी पेशेंट हूँ, आपने मेरे सारे टेस्ट करवाए हैं, सब चीज़ें ठीक है। अच्छा अच्छा, सही। ओके सारा, जो है वो आपको याद है कि बचपन में कभी आपको चिकन पॉक्स निकली हो, या आपकी घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपकी चिकन पॉक्स की वैक्सीन करवाई हो? नहीं डॉक्टर, मुझे याद नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। सारा, हम जो है क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और आपको एक्सपोजर एक दिन के लिए हुआ है और आपको 24 हफ्ते का हमल है, तो जो खतरे वाला पीरियड होता है हमल का, जो 10 से 14 हफ्ते का होता है, बल्कि चिकन पॉक्स के जो इन्फेक्शन होता है उसमें 20 हफ्ते से पहले वाला जो हमल का हमल का दौरानिया होता है, उसमें चिकन पॉक्स अगर हो तो हमल को नुकसान होने का खदशा होता है। और आप जो है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत खुशाइन खबर है कि आप वो पीरियड गुजार चुकी हैं और आपके बच्चे का बनावट का अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल सही आया है। तो इसमें चिकन पॉक्स की वजह से बच्चे में खराबी आने के चांसेस बिल्कुल गैर मामूली ना होने के बराबर हैं। और वो भी हम कुछ टेस्ट के जरिए आपकी तशखीस करवाएंगे और जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे में कोई खराबी आ सकती है कि नहीं, और उसके लिए क्या जरूरी इकदाम करवाए जाएं। क्योंकि आप लोग को वैक्सीन का भी नहीं याद है, और तो इसलिए हम आपका एक जो है जो वेरिसूरा जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जी का टेस्ट होता है अलाइजा से, आईजीएम और आईजीजी, वो करवाएंगे। उस टेस्ट के जरिए हमें ये, और उसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट दोबारा से करवाएंगे, जैसे सीबीसी विद टीएलसी वगैरह। और फिर अगर हमें उन टेस्टों के जरिए जो है वो हमें उसमें पता चलेगा कि अगर आईजीजी लेवल आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, तो वो इस बात की तस्दीक होगी कि आपको पहले या तो चिकन पॉक्स हुई थी या फिर आपको किसी वैक्सीन वगैरह आपको करवाई है आपके वालिदैन ने, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कुव्वत मदाफियत अच्छी मौजूद है। इसमें हम मजीद ये कर सकते हैं कि आईजीजी का टाइटर करवा सकते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि आपकी जिस्म के अंदर अच्छी कुव्वत मुदाफियत है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आईजीजी का टेस्ट नेगेटिव आता है, तो वो ये जाहिर करेगा कि आपको ना तो चिकन पॉक्स हुई है, ना आपके जिस्म में आप कुव्वत मुदाफियत है। लेकिन इसमें भी अभी क्योंकि आप फौरन मेरे पास आ गई हैं, अभी आपको एक्सपोजर का सिर्फ एक दिन हुआ है और आपको कोई रैश वगैरह की भी अलामत नहीं है, ना आपको कोई बुखार वगैरह है, तो ये आपके लिए खुशाइन बात है। आप जो हैं अभी से ही जो है वो अगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। फोलिक एसिड जैसे आप ले रही हैं लेती रहें, आयरन कैल्शियम की गोलियां देती रहें, जो है ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल करें, फल और सब्जियां खाएं। मजीद जो है वो जिस बच्ची को चिकन पॉक्स है, हमल के पूरे दौरानिया में आप थोड़ा सा अपना राब्ता कम करें, और ऐसे भी कोई अफराद जिनको चिकन पॉक्स हो उनसे अपना राब्ता कम करें। और अगर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बुखार या रैश होता है, तो आप फौरन जो है वो आए हमारे पास और हमें रिपोर्ट करें और बताएं। और अगर बुखार होता है तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर फौरन आप हमारे पास आए, तो फिर हम आपको टैबलेट ए साइक्लोवर होती है, वो 800 mg में 5 दफा लेनी होती है 7 से 10 दिन तक। और फिर इंशाल्लाह ताला उससे बच्चे के ऊपर और आपको भी कोई चिकन पॉक्स के कोई जो है वो पेचीदगियां नहीं होंगी, ना आपके को कोई पेचीदगी होने का खदशा होगा और ना बच्चे में कोई पेचीदगी होगी। सारा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी डॉक्टर साहब, समझ में आ रही है। डॉक्टर आपने बताया आप पहले मेरा टेस्ट करवाएंगी, देखेंगी कि मुझे पहले कभी हुआ है या नहीं। तो अगर उसमें जो है जैसे आपने बताया उसमें कुव्वत मुदाफियत मेरी नहीं बनी हुई, लेकिन मुझे इन्फेक्शन पॉजिटिव आ गया, तो फिर आप मुझे कौन सी दवाई देंगी? ए साइक्लोविर के नाम से दवा आती है, वो 800 mg की 5 दफा दिन में लेनी होगी। और अगर आपको बुखार या रैश की अलामत हुई, तो आपको तकरीबन 7 से लेके 10 दिन तक वो दवा लेनी होगी। और फिर आपका हम दोबारा से वेरिसूला का जो है वो टेस्ट करवाएंगे, बॉडी में इम्यूनिटी देखने के लिए सीबीसी का टेस्ट करवाएंगे, आपके दूसरे बेसलाइन टेस्ट करवाएंगे, जिससे जिससे हमें ये तस्दीक हो सके कि आपकी बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी है। और बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी दोबारा से रिपीट करवाएंगे। और अगर वो तमाम रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं और बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आता है, बच्चे की ग्रोथ का, उसमें पानी का और उसकी बनावट का, तो फिर आप बिल्कुल जो है वो बेफिक्र हो सकती हैं। और फिर जैसे आपका हमल चल रहा है, आप 24 हफ्ते पे हमारे पास आए, 32 हफ्ते पे, 36 हफ्ते पे हम आपका बच्चे का
अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आपको, इसी तरह से चेकअप करते रहेंगे 36 हफ्ते पे। फिर आपका क्योंकि पहला बच्चा है, आपके डिलीवरी का लाया अमल तैयार करेंगे और उसमें आपको हम कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, अच्छे स्पेशलाइज सेंटर में करवाएंगे, आपको 1-to-1 लेबर केयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हमल के बाद आपको और आपके बच्चे को नीनेटोलॉजी में रेफर किया जाएगा ताकि मजीद उसकी तशखीस हो सके कि उसमें चिकन पॉक्स की वजह से कोई जिस्म में कोई असरात वगैरह तो नहीं है। और फिर आप बाद में चाहें तो एक मुनासिब वफ़ा करके दोबारा प्रेगनेंसी कर सकती हैं। और प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के बाद, बल्कि 3 महीने के बाद आप चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी ले सकती हैं। और फिर उसमें आपको जो है वो कुछ अरसे तक कॉन्ट्रासेप्शन करनी होगी, 1 से 3 महीना। तो आप अगर मजीद कोई बात जानना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। अ, नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे बच्चा जब पैदा होगा तो आप उसका कोई टेस्ट करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हाँ उसके? हाँ, अब बच्चा जब पैदा होगा तो उसको नीनेटोलॉजी यूनिट में रेफर किया जाएगा और बच्चे का भी वेरिसुला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जी का टेस्ट करवाया जाएगा लाइजा से। और अगर बच्चे के अंदर जो है वो आईजीजी जो है वो है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को जो है वो हमल में थोड़ा सा माइल्ड सा इन्फेक्शन से बच्चा जो है वो उसको आईजीजी ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर आईजीजी का टाइटर कम होगा तो बच्चे को हम आईजीजी जो है वो पैदाइश के बाद देंगे बच्चे को भी। और मैडम न्यूनेटल का, मैडम मुझे एसाइक्लोविर का कहीं पे नहीं मिला कि न्यूनेट्स को एसाइक्लोविर देते हैं कि नहीं देते। चलो ठीक है। यू डन? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नो मैडम, अब आई डोंट नो एनीथिंग मच मोर देन दिस। ओके मैडम अब आप ऐड कर दें। ठीक है। अगर बच्चा सिम्टोमेटिक होता है, जैनब सही बता रही है, तो फिर हम उसको एसाइक्लोविर देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब ये मीटिंग खत्म हो, नेक्स्ट वाली स्टार्ट हो, तो फिर मैं आपको फीडबैक देती हूँ। डॉक्टर परवशा, जो है वो पहली जो पुरानी गाइडलाइंस थी और जो ईबीएम भी पुरानी वाली है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप विद इन द एक्सपोजर 7 to 10 days वेरिसूला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जी दे दें अगर पेशेंट नेगेटिव है। लेकिन अभी जो नई वाली चिकन पॉक्स की गाइडलाइन आई है उसमें आईजीजी नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि अगर एक्सपोजर की हिस्ट्री है तो आप उसको फौरन जो है वो एसाइक्लोविर 800 mg 5 times a day स्टार्ट करा दें, और अगर उसको एक्टिव इन्फेक्शन की एविडेंस आती है तो वो पूरा 10 से लेके 14 दिन तक दे। तो मैडम ये बात इसी तरह से ये डॉक्टर परविशा, सॉरी लेकिन मतलब मुझे जो है ना, मेरी जो मैंने चीजें वो बहुत डिफरेंट है। जिस तरह इन्होंने न्यूनेटल का बताया, जो मेडिकेशन बताई, मतलब मुझे बहुत। आपकी आवाज नहीं आ रही। हम करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। जी। हाँ, इस पे करते हैं। पहले हम आ जाते हैं इस पर, क्या कहते हैं, इनके फीडबैक पर। आसिया, आपको जो है ना पेशेंट का नाम भी दिया गया था और आपको पूरी हिस्ट्री दी गई थी ताकि आप फोकस्ड चलो। हाँ, सुन रही हो आसिया मुझे तुम? हाँ हाँ डॉक्टर परवशा, ओके। मैं कनेक्ट हो गया। तो पहली गलती आपने वही वाली रिपीट की है, आप सब करते हो। आपको सिनेरियो जब दिया जाता है, पेशेंट का नाम भी लिखा हुआ होता है, डिटेल्स भी लिखी हुई होती हैं, यू वेस्ट योर टाइम आस्किंग सेम थिंग्स विच आर ऑलरेडी बीइंग टोल्ड टू यू। ठीक है? तो अब आपने क्या किया, आपने मेरा नाम भी मुझसे दोबारा पूछा, फिर आपने आपने डॉक्टर को दिखाया था रेगुलर, आपके टेस्ट हुए हैं, आपने अपना नाम, आपको क्लियरली लिख के दिया गया है, दिस इज योर रेगुलर पेशेंट, ही हैज बीन अंडर योर रेगुलर केयर। हम्म। तो व्हाई व्हाई यू पीपल डू दिस मिस्टेक? एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे? यही तो मैडम, अब ये अभी भी यही गलती की है, बिल्कुल गौर से नहीं पढ़ा, एक एक सेंटेंस जल्दी से पढ़ा से सिनेरियो को। आप लोगों को क्या जल्दी होती है? आपको एग्जाम में भी पूरा 1.5, चलो 5.5 जो मिनट्स होते हैं वो आपके लग जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं, आपके शफल होने में ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। ठीक है? बाकी 1.5 मिनट्स आपको मिलते हैं स्टेशन अपना अच्छे से सिनेरियो पढ़ने के लिए।
क्लियरली उसको पढ़ने के लिए। और आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे नहीं, और जो चीजें लिखी हुई होंगी, आपको एग्जामिनर भी ऐसे ही, मैंने तो चलो हंस के बताया ना, एग्जामिनर बोलो डॉक्टर साहब आपको आपको बताया तो है कि मैं आपकी रेगुलर पेशेंट हूँ, आपको दिखाती हूँ, लगातार दिखाती हूँ, सारे टेस्ट आपने मेरे कराए, अब क्यों पूछ रही है मुझसे बार बार एक ही बात। मैडम ये जो 2 मिनट हमें Recognize। स्टेशन पढ़ने के लिए मिलते हैं वो उस 10 मिनट्स में काउंट नहीं होते? नहीं। सही। इसलिए जब वहां जाके आप बैठते हैं ना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और उस सिनेरियो पे सबसे ऊपर देखा करो, लिखा हुआ होता है यू हैव 2 minutes to read the scenario and 10 minutes to perform the scenario। उस सिनेरियो को अच्छे से पढ़ा करो, 2 बार पढ़ा करो, ठीक है, 2 times पढ़ के रजिस्टर किया करो कि क्या क्या चीजें लिखे। और जब आप पेशेंट से या स्ट्रक्चर डिस्कशन में आप हिस्ट्री पॉइंट्स बता रहे होते हो ना, तो उस सिनेरियो को आप बार बार दोबारा देखा करो, ठीक है, उसके ऊपर नजर रखा करो, उसके ऊपर आप अपनी फिंगर भी पॉइंट कर सकते हो कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं पूछना, आगे मैंने और बातें पूछनी है। या 3 4 कंप्लेंट्स है उस पेशेंट की, madam, as my patient has this complaint, so I will inquire about it. Then my patient also has presented with this complaint, so I will like to inquire about this for how long, and if she is there any history of blah blah। ठीक है, आपको कोई हम्म। मना नहीं करता कि आप सिनेरियो की तरफ नहीं देखो, आप एग्जामिनर की तरफ देखो, लेकिन आप सिनेरियो के को भी देखो बार बार। इट शोज कि यू आर अटेंटिव, you don't want to miss any detail from the scenario। हम्म। ओके। अब पहली जी। तो मुझे आपकी यही गलती निकालनी थी, उसके बाद फिर हिस्ट्री। चलो ठीक है, एक्सपोजर, एक्सपोजर में उसने जो सिनेरियो में लिखा हुआ है ना, एक्सपोजर को आपको पता है कि हमें अच्छे तरीके से एक्सपोजर को डिग आउट करना होता है। आप उससे पूछें, अब आपको पता है कि एक रैश किसी भी बंदे को हुआ है, वो पेशेंट कितने दिन पहले इन्फेक्टेड रहता है और कितने दिन बाद तक इन्फेक्टेड रहता है, कैन यू टेल मी? मैडम अगर चिकन पॉक्स का रैश है तो पेशेंट जो होते हैं वो विद अपीयरेंस ऑफ रैश के 2 to 5 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रैश अंटिल द रैश का जो पूरा कोर्स होता है कि वो नोड्यूल्स बनाएगा, पेप्यूल्स बना के, जब वो क्रस्ट, फाइनली बिल्कुल क्रस्ट हो क्रस्ट जाता हो है। जाएगा, जी। तो जब तक वो इफेक्टिव रहता है, जो 4 to 6 weeks तक हो सकता है ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब आपका क्या क्वेश्चन बनना था पेशेंट से कि आप इससे पहले अपनी भांजी से मिली हैं? रैश तो उसको आज हुआ है ना, उसको तो वो तो उसके तो कान खड़े हुए हैं जब उसको रैश हुआ है। आप उनसे पूछें कि आप पिछले कुछ दिनों में आप उनसे मिली हैं। इट मीन्स के बिफोर अपेयरिंग रैश ही वॉज इन्फेक्टिव, है ना, हाँ उसकी पे नीज उस इन्फेक्टिव थी ना। भांजी, हाँ भांजी तो इन्फेक्टिव होगी ना। हाँ, भांजी तो इन्फेक्टिव हो। तो वो पहले भी इन्फेक्टिव होगी। अब पेशेंट का उसके साथ कितना पहले एक्सपोजर रहा है, वो कब से कब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंट मिली है, या फिर वो बस कल ही मिली है, इस तरीके से आप उसको जो है आप पूछोगे। और वो उस वक्त भी इन्फेक्टेड ही थी वो बंदी, उसकी नीस इन्फेक्टेड ही थी, 1 day बिफोर शी वॉज इन्फेक्टेड। ठीक, तो उसका हम्म। एक्सपोजर तो हो गया इन्फेक्टेड बंदे से। तो आपने, मुझे ऐसा लगा कि आपने जो है ये समझा कि चलो रैश अब हुआ है उसको, तो इसकी एक ही दिन की हिस्ट्री है, मे बी मैं रीअश्योर करूं। आपने हाँ रीअश्योर हाँ 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 मैडम, ही ये गॉट मेरे बैक ऑफ एक्सपोज, माइंड, ये हाँ ये गलत मेरी गॉट कॉन्सेप्ट था, एक्सपोज। और ये मुझे इसको मैंने सही से सोचना चाहिए था कि उसकी इन्फेक्टिविटी जो होती है वो 1 हफ्ते पहले की भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो पेशेंट जो है वो अपनी भांजी से 1 हफ्ते से आ रही जा रही हो और मिल रही हो उससे ना। तो हाँ। सॉरी डॉक्टर पलवशा, मैंने एक चीज पूछनी थी कि ये 2 days बिफोर रैश और 5 days आफ्टर रैश नहीं है इन्फेक्टिव पीरियड? जब तक क्रस्ट होता है, एक मिनट इसको कंफर्म करते हैं। किसी ने गाइडलाइन खोली हुई है, मुझे उसका सेक्शन बता सकते हो, मैं कंफर्म करूं? एनीबडी? रुको मैं गाइडलाइन खोल लूं।
स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताना। जी हो रही है डॉक्टर पलवशा, स्क्रीन स्क्रीन, शेयर। ओके। क्लियर है। Women should avoid contact with potentially susceptible individuals, other pregnant women or neonate until the lesion have crusted over. This is usually about 5 days after the onset of rash. दोनों बातें एक ही हैं। अगर आप ये बोल देती हैं जब तक वो सूखता नहीं है, crusted over, या फिर रैश होने के 5 दिन के बाद। ठीक है चवेरिया, आपको आपका आंसर मिल गया। ओके। उसके बाद आसिया, आपकी जो है काउंसलिंग, आपने काउंसलिंग बहुत अच्छी की। आपने नंबर स्टेप की बात की, उससे हिस्ट्री ली, उसने शी रन श्योर, एंड देन आपने उसके लेवल्स करवाए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन आपने करवाए उसके, और आपने उस हिसाब से बताया कि अगर गोते मुदाफियत जो है वो कम हुई और पॉजिटिव हुई तो फिर जो है आपको आज से 7 दिन के बाद आपको दवाई दी जाएगी। आपने डोज भी बता दिया। एक्सपोयर के 7 डेज के बाद स्टार्ट की जाती है। ठीक है। डॉक्टर पलवशा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पूछनी है। आप कह रही हैं एक्सपोजर के 7 डेज के बाद की जाती है। मैडम, मैंने जो वो किया था, मैंने असल में ये जो है ना, ये डॉक्टर हेरा के नोट से पढ़ा था अभी। तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर विद इन 7 to 10 days ऑफ द अपियरेंस ऑफ द रैश पेशेंट आ जाती है, तो हमें आपके जैसे ही पेशेंट को पेशेंट ने, रैश नहीं हुआ? हाँ रैश नहीं हुआ, मेरे पेशेंट को रैश नहीं हुआ। तो हाँ, रैश के और बाद मेरी हमें बात फौरन शुरू सुनो, करनी होती है। हाँ, वो रैश के बाद ट्रीटमेंट हमें डोज उसको दोगी। फौरन, देर आर हाँ टू फौरन देर आर फौरन, टू थिंग्स चंदा। एक है पोस्ट हाँ एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, दिस थिंग, हाँ। पीईपी, हम्म। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। सिर्फ एक्सपोजर की हिस्ट्री के साथ आई है ना, तो आपने उससे सिम्टम्स पूछ लेने हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स तो नहीं है, माइल्ड सिम्टम जो पेशेंट ने नोटिस ना किए हो। आपको कोई जो है वो रैश आपकी बॉडी पर तो नहीं है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि शी इज जस्ट बीन एक्सपोज्ड एंड शी हैज नॉट हैज डेवलप्ड एनी सिम्टम एंड रैश। ठीक है, अब आप उसको देंगी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, इट शुड बी गिवन फ्रॉम डे 7 to 14 पोस्ट एक्सपोजर। सही। मैडम, फॉर पूरा 10 डेज लिखा हुआ था उसमें, टोटल 10 डेज। एट हाँ, हंड्रेड एक एम जी हफ्ता बनता है फाइव ना। 800 mg 5 times a day। उसको छोड़ो, तुम्हारे नहीं सामने ये नहीं, जो देखो गाइडलाइन लिखी हुई है ना। कौन बोल रहा था, बोले? जी मैम, डॉक्टर ये परवशा, जिसमें अगर रैश अपीयर नहीं हुआ ना, तो उसमें हमने 800 mg 4 times a day देनी होती है, 7 से 14 डेज तक। 7 से 14 डेज और तक जिसमें रैश, कितने बन गए? कितने दिन बन गए ये? 7 7 डेज ही होते हैं। 7 डेज बन गए। और अगर आपके पेशेंट में एसाइक्लोविर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकती हैं। ठीक है, विच कैन बी गिवन अप टू 10 डेज आफ्टर द कॉन्टैक्ट, आफ्टर द एक्सपोजर। ठीक है, और उसको आप ठीक है डॉक्टर परवशा। इन्फेक्टिविटी का पीरियड बताएंगी। और अगर उसको रैश डेवलप हो गया तो आप उसको आइसोलेट होने का बोलेंगी। एंड अगर आपकी पेशेंट दोबारा एक्सपोज हो गई, उसको फर्दर एक्सपोजर हुआ चिकन पॉक्स का, ठीक है, और जब वो बोलेगी, जब आपने जैसे उसको बोला कि आपने दोबारा जो है अपनी नीज से अवॉइड करना है कि आप उनसे ना मिले ना फिलहाल, लेकिन अगर वो दोबारा एक्सपोज होगी, सेकंड टाइम आपकी पेशेंट एक्सपोजर की हिस्ट्री देती है ना, तो फिर आप दोबारा एक बार टेस्ट करवाओगे। पहले तो आप चेक करोगे कि आइदर
उसमें सीरो कन्वर्जन हो रही है या हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई, ठीक है, आईजीजी उसके <100 है, तो फिर आप उसको सेकेंड कोर्स ऑफ एंटीवायरल आप दे सकती हैं फ्रॉम 7 डेज आफ्टर द एक्सपोयर, वही वाली 7 to 14 डेज तक आफ्टर द एक्सपोयर। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सपोयर के लिए पेशेंट को एसाइक्लोविर नहीं दी थी, आपने इम्यूनोग्लोबुलिन दी थी और पेशेंट फर्दर एक्सपोयर के साथ आई है, इफ द वेरिसेला इम्यूनोग्लोबुलिन इज यूज्ड फॉर पीईपी इट कैन बी रिपीटेड। इसकी एक कंडीशन है, इट कैन बी रिपीटेड अगर एक्सपोयर जो है आखिरी डोज के 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही हुआ है। लाइक आज आपने दी, ठीक है, आज आपने उसको दे दी और इसी अगले 21 दिन के अंदर वो दोबारा आपके पास आई है ना, अगर एक्सपोज होके, तो फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन इसको अगेन दे सकती हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकती। ये कंडीशन अप्लाइड होती है जस्ट फॉर द वेरिसेला जोस्टर आईजी, नॉट फॉर पीपी। पीपी आप कोर्स दे सकती हैं आराम से जब भी वो आएगी सेकेंड एक्सपोयर के साथ। और मैडम इस पेशेंट को अगर ये अराउंड द डिलीवरी आती है तो फिर हम इसको जो है वो एक तो डिलीवरी के टाइम पे आईवी एसाइक्लोविर शुरू करवाएंगे जी और दूसरे जो है वो इसकी डिलीवरी को डिले भी करेंगे ना 3 to 5 डेज, जी ताकि एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर चली जाए। हाँ जी। और जब रैश और डेवलप हो जाता है, फिर आप उसको जो है रैश डेवलप होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो। दो दो एसाइक्लोविर आप दो टाइप के देते हो, एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप दे रही हैं, एक आप ट्रीटमेंट के लिए दे रही हैं। ठीक है। जब मैडम ये आपके देखिए पेशेंट को, मैडम, ये अराउंड डिलीवरी आई 37 वीक्स पे आई, अभी इसको लेबर पेन्स नहीं हुए हैं, इसने तो आप एक्टिव आईवी दो, चिकन पॉक्स आईवी देंगे। आईवी दो। और मैडम उसके फिर हम लेबर के बाद जब उसका हो जाएगा तो फिर हम उसको ओरल पे कंटिन्यू रखेंगे ना। नहीं, आप एसाइक्लोविर दे क्यों रही हो पेशेंट को, पहले तो मुझे ये बताओ। इस वक्त लेबर के वक्त तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, ताकि बस, पेरीनेटल हाँ, उसके बच्चे। अलावा उसकी हाँ सपोर्टिव थेरेपी होगी बस। ठीक ठीक है। सही। और एक लास्ट के बेबी का ये, वट आर द न्यूनेटल रिस्क ऑफ वेरिसेल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी एंड द कैन बी प्रिवेंटेड और अमेलियोरेटेड। अगर मम्मा को आखिरी 1 महीने में हुआ है प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, तो बच्चे को सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये आपने बताया। अ प्लान डिलीवरी शुड नॉर्मली बी अवॉइडेड फॉर एटलीस्ट 1 week after onset of maternal rash to allow passive transfer of the antibodies from mother to child, provided that continuing the pregnancy does not pose any additional risk to the mother or baby। मीन्स के अगर अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स चल रहा है, कोई और मम्मा को इंडिकेशन नहीं है जल्दी डिलीवर करने की या बेबी को, तो उस केस में आप 7 डेज डिले कर सकती हैं। लेकिन आपकी पेशेंट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई ऐसी कि आपको जल्दी डिलीवर कराना है, फिर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। न्यूनेटोलॉजिस्ट मस्ट होना चाहिए। वुमेन विद चिकन पॉक्स शुड ब्रेस्ट फीड इफ दे विश एंड आर वेल इनफ टू गो। ठीक है। अब आ जाते हैं चिकन पॉक्स की, जो बच्चे को जो देनी है हमने प्रोफाइलैक्सिस। For babies born to mother who have had chickenpox within period 7 days before to 7 days after the delivery, डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले या डिलीवरी के 1 हफ्ता बाद, तो उन बच्चों को प्रोफाइलैक्सिस आपने देनी है इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ, विद और विदाउट एसाइक्लोविर, डिपेंड, इट डिपेंड्स। ये पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा कि बच्चे को एसाइक्लोविर देनी है नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन तो मस्ट देनी ही देनी है। ठीक है। जवेरिया, अब आप बताएं, आपका कंसर्न क्लियर हुआ? आपने इससे डिफरेंट कुछ पढ़ा है? और पलवशा, जिस तरह मतलब इन्होंने डिलीवरी के बारे में बताया था कि हम आपके बच्चे का टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तो वो सिर्फ 24 वीक्स पे है। ये तो न्यूनेटल वेरिसोला के लिए तो 7 डेज का पीरियड होना चाहिए ना, बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी। हाँ, तो 24 वीक्स पे अगर है और बच्चे को, पेशेंट नियर इसको टू तो डिलीवरी। अभी अभी एक्सपोज होके आई है ना, तो उस वक्त सिर्फ हम बच्चे को हाँ ऑब्जर्व जी। करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जी। आप, और वही वाली चीज थी जो अभी आपने क्लियर कर दी है, ये साइक्लोवीर और आईवीआईजी। हाँ, विद और विदाउट। हम्म। ठीक है। और डॉक्टर पलवशा, बच्चे के अंदर तो हम आईवीआई वो इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट नहीं करवाते हैं, हम तो मदर की हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर उसको ट्रीटमेंट देते हैं।
एक मिनट। हाँ, बच्चे में टेस्ट नहीं होते। देयर इज नो नीड टू हाँ जी, टेस्ट इन दीज क्योंकि जिस तरह सर्कमस्टांस। इन्होंने कहा था कि हम बच्चे। जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर पलवशा। ठीक है आसिया, आपको आपके सवालों के जवाब मिले? जी डॉक्टर पलवशा, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। तो बेहतर होता है कि आप गाइडलाइन खुद खोल के पढ़ा करो, और किसी भी जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, उनको पहले टैली करते हैं। हमेशा पहले टैली किया करो, उसके बाद भले से रिलाई कर लिया करो। क्योंकि चिकन पॉक्स की गाइडलाइन सिंपल नहीं है, इसमें वर्ड्स ट्विस्ट होते हैं, एंड वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड विद कंसंट्रेशन। सही। जी जैनब। हाँ, बस डॉक्टर परमेश्वर यही सारी चीजें वो कर रही थी, मैं सीक्वेंस बताना चाह रही थी। अगर बताऊं मैं? जी जी, अ, डिस्कस करो। जैसे अगर ये पेशेंट इस तरह है तो हम इसके मैनेजमेंट में ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑफर द सपोर्ट जी एंड वी काउंसिल फॉर द लाइफ स्टाइल मेजर्स, अवॉइड द कॉन्टेक्ट विद अदर elder, pregnant and other childs, and she should wear the mask, proper hand washing, and we start the tablet acyclovir 800 milligram 5 times for the 7 days, and patient should be counseled that there are, if she develops the rash or having any problem, there is a risk of fetal-maternal infection as he is at 24 weeks. So there is 1% chances of the uh, fetal varicella syndrome, in which there is a baby may have skin scarring or any limb deformity at growth restriction, and in mother there may be the chances of pneumonia, hepatitis, encephalitis. So if she feel unwell, she should immediately report to hospital. And for the fetal infection, we will do uh, the fetal testing or ultrasound after the 5 weeks of the exposure, and if needed, amniocentesis will be performed. सही है, और उसका टाइम भी आप बता हाँ, देंगे सिंथेसिस का। डॉक्टर पलवशा, एक ये सिनेरियो करवा दें कि अगर 20 वीक से पहले आ रही है और फीटल वेरिसिला सिंड्रोम पॉजिटिव आता है, फिर उस केस में क्या? कौन बोल रहा है? आपका म्यूट आ रहा है डॉक्टर पलवशा। मेरा अब आ रही है आवाज। अब आ रही? जी। ठीक है। देखो, पहले तो इसका रिस्क ही बहुत कम है, अगर उसको फर्स्ट 28 वीक्स पे होता है 1% है। ठीक है। उसके आपको फीचर्स देखने हैं, और ये स्किन स्कारिंग, डर्माटो, ये सारी लिखी हुई है, सामने ही है आपके। स्किन स्कारिंग, डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, आई डिफेक्ट्स, हाइपोप्लेजिया, ये सारी चीजें लेट्स सपोज आपको अल्ट्रासाउंड में मिलती हैं। तो फिर आप पेशेंट को चॉइस देंगे कि ये सारे डिफेक्ट्स बच्चे में हो गए हैं अब, और अब जो है आपकी चॉइस है। क्योंकि देखो, पहले पहली बात तो ये कि 1% है, बहुत कम है। इसकी ट्रीटमेंट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बेसिस पे हम अपना जो पेशेंट है ना, वो हम ले जाते हैं टर्म तक, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और इस जब अल्ट्रासाउंड पे आपको ये फीचर्स मिलते हैं, देन आप एमनियोसेंटेसिस करके कंफर्म करते हैं एक बार कि ये बेबी में वायरस है या नहीं है। ठीक, जब वो कंफर्म हो जाता है ना, उसके बाद आप फिर पेशेंट को कोई चॉइस दे सकते हो रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर कंटिन्यूएशन। ऐसा सिनेरियो आपको वैसे आएगा नहीं। ये इन्होंने, एक तो इसकी परसेंटेज बहुत कम दी हुई है। ठीक है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे फीचर्स मिलते हैं, या मम्मा को एक्टिव चिकन पॉक्स हो गया है अर्ली उसमें 28 वीक से पहले, तो फिर आप 5 वीक्स के बाद जो है आप उसका एमनियोसेंटेसिस कराते हो, डिटेल अल्ट्रासाउंड करवाते हो। अब इसको गाइडलाइन को, इसको थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं आगे। इसमें इन्होंने ना एक स्टडीज दी हुई है कि क्या इन्होंने किया है। The presence of well-cell DNA has high sensitivity, इसको छोड़ दो। Women who develop chickenpox before 24 weeks of gestation has VZV DNA detected in the amniotic fluid. Amniotic fluid correctly identified 2 cases of fetal varicella syndrome that occurred in this series, but was positive in 7 other cases, 5 of which ended in birth of the normal baby, 1 in termination where there was no evidence of FES in the fetus, or 1 where IUD occurred in the baby with triploidy and no evidence of FVZ.
तो आपने पेशेंट को चॉइस दे देनी है कि आप कंटिन्यू कर लो या फिर आप टर्मिनेट कर लो। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने 1 of 2 केसेस, एक बेबी टर्म पर लेकर गए हैं ये लोग विद बायलेटरल माइक्रोऑप्थेल्मिया वाज नॉट डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड, ऐसे भी केसेस हैं। नो केसेस ऑफ एफवीसी अकर्ड व्हेन एमनियोसेंटेसिस वाज नेगेटिव। तो एमनियोसेंटेसिस जब पॉजिटिव आ जाएगी, आपने बताना है पेशेंट को कि बेबी पैदा हो जाएगा लेकिन बेबी के साथ ये प्रॉब्लम्स होंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एनॉमलीज हैं, कुछ ऐसे जो डिफेक्ट्स हैं बच्चे में, वो अभी हमें पता नहीं चल रहे, लेकिन जब वो पैदा होगा तो वो उन मसलों के साथ पैदा होगा। चॉइस इज अप टू यू कि आइदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी और टर्मिनेट। बट डॉक्टर अगर परवेशा, इसमें ना रिस्क ना बहुत कम होते हैं, अप टू एग्जैक्टली 14 1%, 1 to 2% 1% होती है। तो फीटल उसको फीटल तुम वेरिसेला लोगों को सिंड्रोम। हाँ लगता है कि 1% रिस्क, इतना स्मॉल, नियरली 1%, इसको वो लोग वो डॉक्टर आगे बच्चा बल्कि यही कहते हैं और कि 1% में मैड एमनियोसेंटेसिस से मिसकैरेज का भी चांसेस हो जाता है, हाँ, तो और इतना कम मैडम होता है। इसमें ये चीज होती है कि ना, जो वेरिसेला ज़ूस्टर सिंड्रोम होता है वो 14 वीक्स तक उसके होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सेफ साइड पे कहते हैं कि 20 वीक्स का मार्जिन रखते हैं। वरना अगर 14 वीक्स भी अगर पेशेंट क्रॉस कर लेते हैं तो उसमें वेरिसेला ज़ूस्टर होने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि सीएनएस डेवलप हो चुका होता है ना, तो वो सीएनएस को बेसिकली डैमेज करता है, गैंग्लियॉन्स को और न्यूरॉन्स को। तो इसलिए 14 वीक्स के बाद जो होता है वो चांस और भी कम हो जाता है वेरिसेला ज़ूस्टर का। तो डॉक्टर आपको आसिया, ये पुरानी गाइडलाइन में था, अब वाली में ना 28 वीक्स को स्पेसिफिकली यस, बताया हुआ है 28 वीक्स कि का आपने। बताया हुआ हाँ है। जी, 28 है। हाँ आप प्लीज हाँ। ना, आप पुरानी गाइडलाइंस भूल जाओ। आप जिस जो न्यू गाइडलाइन को आए को 1 साल हो गया है ना, नाउ योर प्रायोरिटी शुड बी द न्यू गाइडलाइंस। अब पुराना नया मत करो, इन एग्जाम यू विल कंफ्यूज योर सेल्फ, आप अपने लिए डिफिकल्टी पैदा कर लोगे। 28 वीक्स, चले जी ठीक जी, है। ये रहा। काउंसिल करना होगा कि 28 वीक से अगर कम होगा तो 1% चांसेस होगा वेरिसिला जोस्टर का, और लेकिन जो बहुत एमनियोसेंटेसिस कम में भी है, बहुत कम है। इतने चांसेस तो एमनियोसेंटेसिस अगर करते हैं तो उसमें प्री टर्म के या मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं, उसकी हाँ, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो भी इतना कम है। 0.5 है, वो भी 0.5 है, हाँ 0.05 है, उसके भी अब कम हो गए हैं, अब इतनी एक्सपर्टी आ गई है। तो इसके लिए आप बॉर्डर ना एमनियोसेंटेसिस करें। का 0.5 है और सीवीएस का 1% है। सीवीएस का 1% है और एमनियोसेंटेसिस का 0.5 है। नहीं डॉक्टर आप आसिया, पुरानी 0.5 है गाइडलाइन का दोनों बता का रही अब। हो, अब आप नई गाइडलाइन